Hello students and welcome to your English language class. Today in this class we'll continue learning about the verb and you can refer to your chapter number 8 given in your grammar book for this. Now we have already learnt what is verb and what are transitive verbs and also about direct and indirect objects in the previous class, and in today's class we'll learn about intransitive verbs. So what are intransitive verbs? The verbs that do not take an object. Okay, like for example, birds fly. Okay, so the verb fly doesn't need an object, or you can say tigers roar. So the verb roar is complete in itself and it doesn't require an object to complete the sense of the sentence. Okay, so those verbs which do not require an object to complete the sense of the sentence are known as intransitive verbs. And intransitive verbs are of two types: verbs of action, that is doing, and verbs of being. So what are verbs of action? Look at the following sentence: the telephone rang. So here the subject is the telephone and the predicate or the verb is rang. So the verb rang in this sentence, it indicates an action. इस वर्ड से, इस वर्ब से हमें पता चल रहा है दैट समथिंग इज़ बीइंग डन and is called a verb of action or doing. Okay, so those words or those verbs which tell us about something being done or some action is being done are known as verb of action or doing, and is complete in itself and therefore does not need an object. The verb rang, the telephone rang. Okay, so it is making complete sense and it does not require an object, hence this is an intransitive verb. Other verbs of action such as smile, look, die, live, laugh, roar and cry are examples of intransitive verbs because they do not require an object. Now let us talk about the verbs of being. So look at the following sentence: the lotus is the national flower of India. Here you can see that the subject is the lotus, verb is, and complement the national flower of India. And is the national flower of India is the predicate. Okay, so in the above sentence you can see the verb is expresses a state of being and is called a verb of being. Okay, and the verb is links the subject, the lotus, to the rest of the sentence. देखो यहाँ पे जो is है, जो verb है is, वो दो काम कर रहा है. एक तो वो express कर रहा है state of being, ठीक है, वो कुछ बता रहा है उस लोटस के बारे में कि वो है या था या होगा, ठीक है, तो स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है उसके सब्जेक्ट के. एंड ऑल्सो इट इज़ लिंकिंग, वो लिंक कर रहा है या जॉइन कर रहा है सब्जेक्ट को रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ. द कॉम्प्लीमेंट द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया रेफर्स टू द सब्जेक्ट द लोटस. अब ये जो कॉम्प्लीमेंट, इसको हम कॉम्प्लीमेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो है वो सेंटेंस, जो सब्जेक्ट है लोटस, उसी के बारे में बात हो रही है. ओके, that's why it is called as the complement of the subject. The sentence will be incomplete without the phrase the national flower of India. अगर हम इसको सेंटेंस को यहाँ तक लिखकर छोड़ दें the lotus is, so it will not make any sense, right? So the phrase or the group of words the national flower of India is completing the sense of the sentence. As the phrase the national flower of India completes the meaning of the sentence, it is called a complement. क्योंकि ये जो phrase है या group of words हैं, कौन से? the national flower of India, ये उसको complete कर रहे हैं या उसको पूरा कर रहे हैं. तो एक तरह से इनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ये पूरक हैं, ठीक है. सो इसलिए इनको हम कहते हैं complement. Other verbs of being such as are, am, was, were, become and became take complements to make complete sense. ठीक है,
इसी तरह से और भी वर्ब्स ऑफ बीइंग है इज के अलावा, एम, आर, वॉज, वर, बिकम, बिकेम. वर्ब्स ऑफ बीइंग आर ऑल्सो नोन एज इनकम्प्लीट वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स. अब ये जो वर्ब्स ऑफ बीइंग है आपके इज, एम, आर, वॉज, वर, बिकम, बिकेम, ये सब क्या है, इनकम्प्लीट वर्ब्स हैं. क्यों इनकम्प्लीट हैं? क्योंकि इन्हें एक कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है जिसके बिना ये अधूरे हो जाएंगे. और ये किसकी तरह भी काम करते हैं, एक लिंकिंग वर्ब की तरह काम करते हैं. यहाँ हमने जैसे देखा है कि ये किसको ज्वाइन कर रहा है, सब्जेक्ट द लोटस को और कॉम्प्लीमेंट द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया. ठीक है, इन दोनों को क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लिंकिंग वर्ब. नाउ दे आर नोन एज लिंकिंग वर्ब्स बिकॉज दे लिंक टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. ओके, नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इंडिया इज़ माई कंट्री. अब यहाँ पे सब्जेक्ट इंडिया है, वर्ब इज़ है और कॉम्प्लीमेंट माई कंट्री है. ओके, तो इंडिया क्या है, इंडिया मेरी कंट्री है, इंडिया मेरा देश है. तो इंडिया क्या है, मेरा देश है. तो दोनों क्या हो गए, दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. सो जो बीच में वर्ब है इज़, वो क्या कर रहे हैं, इन दोनों को लिंक कर रहा है. इट्स अ लिंकिंग वर्ब. ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, द लीव्स बिकेम ड्राई. यहाँ पे वर्ब बिकेम क्या है, इट्स ऑल्सो अ लिंकिंग वर्ब. यू सीम नाइस. ठीक है, तो यहाँ पे सीम जो है वो भी क्या है, लिंकिंग वर्ब है या वर्ब ऑफ बीइंग है. चिल्ड्रन फेल्ट वेरी हैप्पी. सो चिल्ड्रन इज़ द सब्जेक्ट, फेल्ट इज़ वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट इज़ वेरी हैप्पी. The subject and complement in the sentences given refer to the same person or thing. अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान देना कि जो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट है वो दोनों एक ही चीज़ के बारे में बात करेंगे या एक ही पर्सन के बारे में बात करेंगे, अलग अलग चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. ओके, द वर्ब इज acts as a link between the two in the sentence. जो वर्ब है इज़, वो एक लिंक की तरह काम कर रहा है. As the complement refers to the same person or thing as the subject, we call it a subject complement. अब यहाँ पे जो complement है, it's talking about the same person or thing as the subject. जो भी subject है उसी के बारे में ही complement बात कर रहा है, right? So हम इसको क्या बोलेंगे, subject complement. जब जो complement है वो आपका subject के बारे में ही बात करेगा या उसी को उसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा, तो आप क्या कहेंगे, इट्स अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. सम वर्ब्स ऑफ एक्शन कैन ऑल्सो टेक अ कॉम्प्लीमेंट आफ्टर देम. और कुछ वर्ब्स ऑफ एक्शन क्या करते हैं, दे कैन ऑल्सो टेक अ कॉम्प्लीमेंट आफ्टर देम. वो अपने बाद भी कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हैं. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. द पीपल मेड हिम द लीडर. ओके, we found him in a good mood. The company appointed Miss Rahman the manager. I consider her trustworthy. Okay, so the words in italics in the sentences are complements because without them the sentences would remain incomplete. तो अगर हम जो ये अभी हमने सेंटेंसेस पढ़े हैं, तो जो इटैलिक्स में वर्ड दिए हुए हैं, इटैलिसाइज्ड किए हुए हैं, जो हल्के से थोड़े से तिरछे या टेढ़े शब्द जो यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर आप उनको हटा दें तो सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं बनेगा. लाइक फॉर एग्जांपल, द पीपल मेड हिम, अगर उसके बाद हम द लीडर नहीं लिखें तो इज़ इट मेकिंग कंप्लीट सेंस? नो. द पीपल मेड हिम व्हाट? द पीपल मेड हिम द लीडर. ओके, सो द लीडर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है. Okay, the words in italics in the sentences are complements because without them the sentence would remain incomplete. They come after a transitive verb plus an object. Like for example, the people made what? Okay, the people made him. तो made क्या है, transitive verb है because it needs an object, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, him. So the people made him. So made transitive verb plus an object him.
तो मेड हिम के बाद जो वर्ड्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इनको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये किसके बारे में बता रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। दे आर नॉट टेलिंग एनीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट बट दे आर टेलिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट. They refer to the object of the verb and not to the subject of the sentence. They give us additional information about the object in each sentence. ठीक है, पहली चीज़ तो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. अगर सब्जेक्ट के बारे में कुछ बात हो रही है तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, अगर ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा. Now these complements are called object complements. Now here's one exercise for your practice. First question is, the following sentences contain a subject or object complement. Identify the underlined words in each case as subject complement or object complement. अब ये जो underlined words हैं इनको आपको identify करने हैं that whether they are subject complement or object complement. Now first is, Rani is my friend. So यहाँ पे Rani and friend वो क्या है, सेम है, they are talking about the same person. तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ओके, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, रानी, और इसी के बारे में बात हो रही है, इसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि रानी मेरी क्या है, रानी मेरी फ्रेंड है. ओके, सो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. आई फाइंड हर वेरी स्मार्ट. सो आई फाइंड वॉट, आई फाइंड हर वेरी स्मार्ट. तो यहाँ पे फाइंड ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, हर ऑब्जेक्ट हो गया, और हमें हर के बारे में कुछ बता रहे हैं या उस लड़की के बारे में कुछ पता चल रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ओके, आई मेट हर इन स्कूल, शी बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड. अब यहाँ पे आप देखिए, शी जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, एंड उसी के बारे में बात हो रही है, दैट शी बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड. तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. नेक्स्ट इज, रानी लव्स ड्रेसिंग फैंसी, शी रिसेंटली डाइड हर हेयर ब्लू. अब यहाँ पे शी रिसेंटली डाइड वॉट, उसने क्या, किस चीज़ को कलर किया, शी डाइड हर हेयर, उसने अपने बालों को कलर किया, और अपने बालों को कैसा कलर किया, ब्लू कलर किया. तो यहाँ पे पहली चीज़ तो हमें ट्रांजिटिव वर्ब मिला, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट मिला, और ये ब्लू जो है वो ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है. सो इट बिकम्स द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, शी इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड सिंगर and she performs professionally. So she is also a very good singer. अब यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में ही बात हो रही है कि वो एक सिंगर भी है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया. ओके, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आइडेंटिफाई द ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स. अब आपको पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं, जिनको कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, और इनट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती. ओके, सो फर्स्ट इज़, वन डे विद्यासागर विजिटेड एन इंग्लिश ऑफिसर. तो यहाँ पे वर्ब क्या है, पहले तो आपको वर्ब आइडेंटिफाई करना है, विजिटेड. अब वन डे विद्यासागर विजिटेड, अब विजिटेड व्हाट या विजिटेड वेयर, सो ही विजिटेड एन इंग्लिश ऑफिसर. तो ये क्या हुआ, अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है. द ऑफिसर वॉज सीटेड ऑन हिज चेयर. अगर हम कहें द ऑफिसर वॉज सीटेड, ऑफिसर बैठा हुआ था, तो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, येस इट इज़. तो ये क्या हुआ, एक इनट्रांजिटिव वर्ब हुआ. ओके, द ऑफिसर वॉज सीटेड ऑन हिज चेयर. ठीक है, अगर हम इसको सेंटेंस को यहीं तक लिखकर छोड़ दें, द ऑफिसर वॉज सीटेड, तो ये कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है. दैट मीन्स इट्स अ इनट्रांजिटिव वर्ब. ही हैड पुट वॉट, so he had put his booted feet on the table. तो ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब. put क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब. विद्यासागर sat, विद्यासागर बैठ गया, विद्यासागर sat. ओके, तो sat क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है. अब अगर इसको सिर्फ यहीं तक लिखें, विद्यासागर sat, तो भी कंप्लीट है, राइट. सो ये क्या हो गया, इनट्रांजिटिव वर्ब. द इंग्लिश ऑफिसर वॉज इंसोलेंट, इंग्लिश ऑफिसर वॉज. अब वॉज क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, इसके आगे कुछ लिखना ज़रूरी है, वरना ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस का सेंस नहीं बनेगा. सो वॉज ट्रांजिटिव वर्ब. ही डिडंट पुट व्हाट, सो ही डिडंट पुट हिज फीट डाउन. तो ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब. पुट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब.
विद्यासागर was insulted. Was क्या है? Again transitive verb. Much later the officer came. अब came क्या है? Intransitive verb है. ठीक है. सो इसके बाद अगर हम कुछ नहीं भी लिखेंगे तब भी इट्स ओके, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है देन अगेन इट इज़ intransitive verb. ओके, यहाँ पे इसको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ वाई इट इज़ intransitive verb. विद्यासागर behaved. Vidyasagar behaved how? Vidyasagar behaved similarly. So it is transitive verb. He taught the officer that everybody needed to be treated with respect. So it is again transitive verb because it needs an object. Third question is tick the correct answer from the given options about the type of the underlined verbs in each following sentence. I studied all afternoon. So I studied क्या है? Intransitive verb. It doesn't need an object. Next is my brother wrote me an email from the USA. So wrote is transitive verb. It needs an object. C is my mum was very worried. Was क्या है? Linking verb है. D he seems very happy there. Seems is again linking verb. And I painted my room yellow. So painted क्या है? I painted. So painted is you can say intransitive verb. Okay, and the last question is following are some sentences with different types of verbs that you learnt in this chapter. Identify the verb in each of them and complete the table below. Zarina walks to school. Walks क्या है? Walks आपका intransitive verb है. Zarina is my cousin. Is क्या है? Linking verb है. तो आप ये जो टेबल दिया हुआ है नीचे, उनके नीचे ये verbs लिखेंगे. जैसे ए में वॉक्स है तो वॉक्स आप कौन से कॉलम में लिखोगे? इंट्रांजिटिव वर्ब में. इज़ लिखोगे लिंकिंग वर्ब में. प्लीज़ ओपन द डोर, ओपन लिखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब में. रानी स्लीप्स वेरी अर्ली, स्लीप्स लिखोगे इंट्रांजिटिव वर्ब में. यू मस्ट राइट अ लेटर टू मी व्हेन आई एम गॉन. सो राइट आप फिर ट्रांजिटिव वर्ब में लिखोगे. माई डैड्स कंपनी मैन्युफैक्चर्स जूट. तो मैन्युफैक्चर्स भी ट्रांजिटिव वर्ब है. दिलीप बिकेम अ वेल नोन राइटर. बिकेम आपका लिंकिंग वर्ब है. द ट्रेन अराइव्ड वेरी लेट येस्टरडे. अराइव्ड इंट्रांजिटिव वर्ब है. और आई है आर नेबर्स सोल्ड देयर हाउस. सो सोल्ड आपका ट्रांजिटिव वर्ब है. और लास्ट इज द बुक अपीयर्स टू बी गुड. अपीयर्स इज योर लिंकिंग वर्ब. ओके, so you have to do these exercise in your grammar book as well as in your notebook also, and submit your homework by 3 o'clock tomorrow. Thank you for watching this video.